to talk about Savitri, an introduction, and I think I am too small to give an introduction of such a world-renowned psychiatrist, respected Dr. Alok Pandeyji, a psychiatrist by profession, a philosopher, a practitioner of integral yoga as developed by Sri Aurobindo. He's a co-editor of Health Quarterly magazine, Namaha, New Approaches to Medicine and Health, published by Sri Aurobindo Institute of Integral Health and Research. He's been an editor of Monthly Magazine, which is the All India magazine published by Aurobindo Society, author of books titled as Death, Dying and Beyond, Patient at the Crossroads, and Veda of the Body. Dr. Alok Pandey is a psychiatrist by profession, a philosopher by temperament. His search for deeper meaning in life while confronting the enigma of death, disease, and suffering led him to the feet of divine Sri Aurobindo and the Mother. It is in their writings that he found the most perfect answers. I think the answers that we don't get, and we look forward to receive those answers from you, sir. Since then, he's been trying to practice the way of integral yoga as developed by Sri Aurobindo. To make a special mention, he served Mother India. He's worked with the Indian Air Force in various capacities before taking premature retirement at the rank of Wing Commander for settling down in the spiritual place in the vicinity of Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry. He offers his services at the Ashram Dispensary and is also associated with a number of projects as a part of Integral Health Center of Sri Aurobindo Society. He is a co-editor of Health Quarterly magazine, as I mentioned previously. And of course, there are a lot of spiritual books to his credit. He is most known and popular for the regular camps and the talks that he holds on this great topic, Savitri, the mantric epic poem of Sri Aurobindo. He has held several workshops and spoken extensively on themes like yoga, psychology, health, education in India and abroad. But more than that, sir, with due respect and adulations and pranams from all of us at All World Gayatri Parivar to you, sir, to begin this journey of Savitri for all of us on this great day. Thank you so much for accepting our invite, sir. And I humbly request you to please come over and to speak on Savitri, introduction and begin. Thank you, sir. नमस्ते। आप सभी को जो दिया के यूथ मेंबर्स हैं उन सबको नमन। बहुत सुंदर कार्य है जो आपने अभी परिभाषित किया, और वास्तव में युवा जो कुछ आपने बताया बड़े सुंदर ढंग से, इसमें एक बात मैं जोड़ दूं, युवा वह है जो भविष्य की ओर देखता है, वृद्ध वह है जो केवल पास्ट की ओर देखता रहता है। आपने देखी होगी एक टेंडेंसी है, युवक हमेशा भविष्य, उसी से उसके अंदर ऊर्जा आती है। ऊर्जा क्यों आती है? वो सदैव उत्साह से भरा हुआ है, आशा से भरा हुआ है। और जब व्यक्ति वृद्ध होने लगता है तो उसके लक्षण ये होते हैं, वो केवल जो हो गया वही एकमात्र अच्छा था, और जो आने वाला है उसके प्रति वो बहुत आशंकित, मानो मृत्यु ही आने वाली है, उसकी व्यक्तिगत मृत्यु मानो संसार की प्रलय है। तो ये हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जब हमारे पाँव के तले से एक तरह से कहा जाए तो जमीन खींच ली गई है। एक ऐसा युग जिसको युग संधि का काल कहते हैं। श्री अरविंद ने इसकी बात की, और एक समय था, काफ़ी गायत्री मंत्र की मैंने बचपन में काफ़ी उपासना करता था, और काफ़ी मैंने लेख पढ़े हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के, और ये बात बड़ी स्पष्ट थी कि यह एक ऐसा काल है जो भविष्य की ओर जा रहा है। उन्होंने देव मानव की बात की, श्री अरविंद दिव्य मानव की बात करते हैं, और एक अद्भुत साइनर्जी जिससे हम प्रारंभ करें सावित्री के परिचय का, वो ये कि जैसे आप 50वां वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्वर्ण जयंती, ये श्री अरविंद की जन्म शताब्दी का 150वां वर्ष है। तो ये बहुत ही अद्भुत साइनर्जी है, और इसी साइनर्जी के साथ सारा विश्व जुड़े एक सुंदर भविष्य की ओर। और सावित्री क्या है? सावित्री वास्तव में हमारे
पुरातन पास्ट सावित्री की कहानी के अगर हम पीछे जाएं तो ये कहानी महाभारत में आती है। जब युधिष्ठिर पूछते मार्कंडेय ऋषि से, कोई है जो हमारी द्रौपदी की तरह इतना उज्जवल हो, इतना चरित्रवान हो, लेकिन जिसको इतनी अधिक पीड़ा सहनी पड़ी हो। और तब मार्कंडेय ऋषि 700 श्लोकों में सावित्री की कहानी सुनाते हैं, कुछ श्लोकों में, और वो कहते हैं कि हाँ, विगत काल में कोई था, वैदिक काल की बात है, और उनका नाम सावित्री था, जिन्होंने पीड़ा भी उठाई, लेकिन उन्होंने अपने आत्मबल के द्वारा भाग्य को बदला। तो एक सबसे बड़ी बात जो सीधी की सीधी सावित्री से निकल के आती है कि हम ना केवल अपनी प्रकृति के दास नहीं हैं, हम भाग्य के भी दास नहीं हैं। हम दास क्यों हैं? क्योंकि हमने दासत्व बोध को स्वीकार किया हुआ है। हम दास क्यों हैं? क्योंकि हम उस चाबी को नहीं जानते जिसके द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। और वो चाबी का प्रारंभ वहाँ से होता है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा सुंदर नाम है, एक एक्रोनिम है दिया, अभिप्सा से प्रारंभ होता है। लेकिन उसका अंत कहाँ होता है? वो उस परम सूर्य से होता है, जिसके उदय के लिए ना जाने कब से, कितने मिलेनियम से हम सब जिसके लिए अभिप्सारत हैं। तो सावित्री वास्तव में उस दिए की सूर्य तक की यात्रा का वर्णन है। प्रारंभ कहाँ से होती है? उस महानिशा से होती है, जब सारा संसार एक महाप्रलय के बोध से डूब गया है, एक अबोध, अचित, अकिंचन ऐसी अवस्था में चला गया है जहाँ पर उसको यह भी स्मरण नहीं है कि वह क्यों है, कहाँ से है। ये एक विलुप्त अवस्था है। ये आत्म चैतन्य के आत्मगोपन की अवस्था है, जिसको श्री अरविंद कहते हैं इन्वॉल्यूशन, जिसके द्वारा इनकॉन्शियंट में प्रवेश कर जाती है। कई बार सृष्टि के साथ ऐसा होता है, प्रलय की अवस्था, जब उसका एक प्रयास तो यही होता है ईश्वर का कि एको हम बहुश्यामी, अंत में एक यूनिट दिव्य बन जाए। लेकिन एक लिमिट तक जाती है ये प्रक्रिया, सृष्टि क्रम, विकास क्रम की प्रक्रिया, और फिर वो कोलैप्स करती है, क्योंकि जो जड़ तत्व है वो तैयार नहीं है एक लिमिट के परे उस दिव्य ऊर्जा को लेने के लिए। अर्थ ये कि हम सबका एक डबल बर्थ है। एक बर्थ हमारा है जड़ तत्व के अंदर, जिसके द्वारा हम अपनी पहचान बनाते हैं कि हम इसके बच्चे हैं, हमारे माता हैं, पिता हैं, हमारा देश है, राष्ट्र इत्यादि। लेकिन हमारे अंदर एक दूसरा बर्थ भी है जो इन सब के परे है, जो जन्म जन्मांतर की यात्रा में संलग्न है, नाना प्रकार के अनेकों देह धारण करता है, लेकिन इन सब देह में धारण करके भी उसके अंदर प्यास एक ही है, वो है पूर्णता की। वो पूर्णता की प्यास को धारण करने वाला हमारे अंदर एक दिव्य शिशु है। सो मैन इज ए डबल बर्थ। जो दिव्य शिशु है उसके अंदर एक स्वप्न है। वो स्वप्न किसने डाला है? सृष्टिकर्ता ने डाला है, क्योंकि वो वास्तव में वो दिखता मनुष्य की संतान है, लेकिन वो वास्तव में भगवान की संतान है, ममेय वंश जो श्री कृष्ण कहते हैं। और चूंकि वो वहाँ से उसकी डबल इनहेरिटेंस है, जो इनहेरिटेंस वो भगवान से लेके आया है वो परफेक्शन की इनहेरिटेंस है। उसके अंदर कहीं ना कहीं स्मृति में ये छिपा हुआ है, बीज रूप में दबा हुआ है कि ये संसार सुंदर होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, सब कुछ सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। लेकिन जब वो संसार में जन्म लेता है तो देखता है चारों तरफ इसके बिल्कुल विपरीत है, अचित है, अंधकार है, ईविल है, सफरिंग है, पेन है, नाना प्रकार की आदि व्याधि, कष्ट और अंत में मृत्यु। तो इस दोहरी अवस्था में जो डबल बर्थ है, दो प्रकार के भाव मनुष्य के अंदर जागृत होते हैं। एक ये कि ये संसार इनकॉरिजिबली, इसका कोई इलाज नहीं है, एक लाइलाज बीमारी है, टर्मिनल इलनेस है। तो इसको हम बाहर निकल जाएं तो बहुत अच्छा है, कोई मार्ग मिल जाए जिससे हम बाहर जा सकें। तो वो एक धारा है अध्यात्म की, एक चिंतन है, एक मार्ग है, जिसके द्वारा हम इस भूमि को छोड़कर, मटेरियल बर्थ को छोड़कर अपने स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन एक दूसरी धारा भी भारतवर्ष में रही है, जो हम वैदिक काल में देखते हैं, जिसकी बात श्री कृष्ण करते हैं, तंत्र में हम देखते हैं, और श्री अरविंद इसको पूरी तरह फोर फ्रंट में ले आते हैं। वो ये कि आत्म तत्व यहाँ आया ही इसलिए है कि वो जड़ तत्व के अंधकार को प्रकाश में, यहाँ जो अचित है उसको सर्व चैतन्य में, जो अदिव्य है उसको दिव्य में, जो असुंदर है उसको सुंदर में, जो असत्य मिथ्यात्व है उसको सत्य में रूपांतरित कर सके। तो ये हमारी ओरिजिनल एस्पिरेशन है, और इसके लिए कोई किताब हम ना पढ़ें, केवल अपने अंदर देखें तो ये स्पष्ट होता है। ओरिजिनल एस्पिरेशन यही है, जिसके कारण सारी कठिनाई होती है। इस प्रश्न का उत्तर श्री अरविंद हम देखते हैं कि उसके समाधान के लिए श्री अरविंद पौंडीचेरी, जिसको हम कहते हैं सीट ऑफ तपस्या, वहाँ पर जाकर संलग्न हो जाते हैं। जितने भी योग के मेजर एक्सपीरियंसेस
और अनेकों अनेकों हैं, पर जो दो निर्वाण और वासुदेवम सर्वमिति उनको पौंडीचेरी आने के पहले ही 1909 के पूर्व ही हो चुके थे। लेकिन उसके बाद इस योग विभूति के बाद भी, योग सिद्धियों के बाद परब्रह्म का अनुभव, वो भी 1909। तो इन योग सिद्धियों के बाद भी वो ये देख रहे थे कि कोई भी व्यक्तिगत योग सिद्धि जब तक वो संसार के अंदर उस सत्य को प्रकट नहीं कर पाती, जड़ तत्व के अंदर संसार की आधारशिला जो है उसको बाहर नहीं ले आ पाती। हम लोग सुनते हैं कि इस सृष्टि में सृष्टिकर्ता विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, देवता तक इसके अंदर समाये हुए हैं। लेकिन जब बाहर देखते तो आश्चर्य होता है, कहाँ है वो देवता, कहाँ सो गए हैं, कहाँ विलुप्त हो गए हैं। और साथ ही हम ये चाहते हैं कि सृष्टि, कहते हैं कि भगवान ने ये संसार बनाया, लेकिन कैसा संसार बनाया? इट शुड बी एन एक्सप्रेशन ऑफ डिलाइट। भगवान के आनंद का ये एकदम अनुभूत प्रमाण होना चाहिए, इसके कण कण में, वाणी में, हमारे कर्म में, सब चीज़ में। यहाँ तक कि हमारी देह भी ऐसी होनी चाहिए जो किसी प्रकार के रोग, शोक, विनाश, मृत्यु इसकी संभावना ना हो। तो श्री अरविंद इस परम औषधि के खोज में, इन सब अनुभवों के बाद, जहाँ वो देखते हैं कि ये सिद्धियाँ काफ़ी नहीं हैं संसार को बदलने के लिए, वो अब चेतना के एक ऐसे विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश करने लगते हैं जो उनकी पौंडीचेरी की योग तपस्या है, जिसके द्वारा वह उस कुंजी को, उस शक्ति को पालें जो वास्तव में संसार को दिव्य बना सकती है। और वो खोज जाते जाते उसका एक पड़ाव, जिसकी बात दीदी ने बहुत सुंदर ढंग से की, 24 नवंबर 1926 को होता है, और दूसरा पड़ाव 29 फरवरी 1956 को होता है। और इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि श्री अरविंद सावित्री को जन्म देते हैं। हालांकि प्रारंभ सावित्री उनके बड़ौदा काल से हो जाती है। फिर 1916 में जब पूरा विश्व प्रथम महाविश्व युद्ध के अंधकार में पूरी तरह मानो विनाश होने वाला है, उस समय श्री अरविंद सावित्री का आवाहन करते हैं। लेकिन सावित्री का जो एक सिस्टमैटिक प्रॉपर, जिसकी बात वो करते हैं, एसेंशन, वो 1927 से करते हैं। तो हम देखें तो 1926 और 1956 के बीच में जो अद्भुत घटना जो श्री अरविंद प्रकट करते हैं हम सब के बीच में, एज इज ग्रेटेस्ट गिफ्ट, श्री अरविंद कहते हैं इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, और माता जी कहती हैं सावित्री इज़ द मैसेज। तो वो 1926 और 1956 के बीच में होने वाली घटना 1900, और उसमें सब कुछ वो उड़ेल देते हैं एक सार रूप में, अपनी चेतना की सारी संग्रहित तप शक्ति को वो डाल देते हैं। बार बार 12 बार श्री अरविंद सावित्री के ऊपर काम करते हैं, और वो काम केवल इसलिए कि वो उसको परफेक्शन बनाना चाहते थे। सावित्री ही नहीं, श्री अरविंद की सारी वाणी 1908 के बाद मंत्रविद वाणी है। वो कहते भी हैं कि साइलेंट माइंड के थ्रू आती थी। उच्च चेतना के देवी देवता 1909 के समय उनके सामने प्रकट होते थे। वैदिक देवियाँ सरस्वती, मही, इला, ये सब उनके सामने प्रकट होती थी, और उनकी वाणी के द्वारा, उनके हाथों के द्वारा लेखनी के अंदर वो आती थी, समाती थी। लेकिन वह कुछ ऐसा प्रकट करना चाहते थे, इनसे वो परिचित थे, और वो जानते थे कि ये मानव चेतना को, मानव बुद्धि को काफ़ी हद तक विकसित कर सकती हैं। लेकिन वो उस शक्ति को चाहते थे जो इन सब की जननी है, और वह शक्ति जो पूरी तरह इस संसार को रूपांतरित कर सके, और उस शक्ति को अपनी मंत्रविद वाणी। सो वो उस उच्चतम स्पंदन को, मंत्र क्या होता है, मंत्र और साधारण वाणी में यही अंतर होता है। साधारण वाणी मध्यमा और वैखरी जिसको कहते हैं, वो एक थॉट की सीमा में, मानव मन की सीमा के अंदर जो प्रवेश करते हैं स्पंदन, उनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ऊपर पश्यंती वाक और उसके भी ऊपर परावाक, उन स्पंदनों को हम प्रकट नहीं कर पाते। ऋषि उन स्पंदनों को रिसीव करते हैं और प्रकट करते हैं। यही गायत्री मंत्र और अन्यान्य मंत्र जो हैं वो उन स्पंदनों को प्रकट करने की प्रक्रिया है। लेकिन श्री अरविंद चाहते हैं कि उस परावाक की मैक्सिमम वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, पोटेंसी, उसको कैसे प्रकट किया जाए। अब वो तो रिसीव कर रहे थे, लेकिन वाणी एक ऐसा माध्यम है, एक मानव वाणी है, अभी भी सीमित माध्यम है। आप उसको साइलेंस में प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर बाहर अभिव्यक्त करना है और इस रूप में कि मनुष्य उसको रिसीव कर सके, इंग्लिश का एक माध्यम श्री अरविंद ने चुना, क्योंकि आने वाले समय में यह है कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हालांकि ये सच है कि हम लोग बहुत
प्राउड हैं, हमारी संस्कृत जैसी देव भाषा है, किंतु आज के समय में अंग्रेजी के माध्यम से उन्होंने उसको, सावित्री को प्रकट करा एक मंत्र विद्वाणी। माता जी ने इसको कहा मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर जो स्पंदन है वो ऐसे स्पंदन है जिसको पढ़ने मात्र से हम योग की उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जैसे एक मंत्र के ऊपर मेडिटेट किया जाता है, वैसे ही जब सावित्री को हम मेडिटेशन के रूप में लेते हैं, और समय के अभाव के कारण मैं इसको एक कंप्रेस कर रहा हूँ, बहुत सारी टॉक्स हैं इस पर। माता जी ने इसके बारे में कहा है कि केवल सावित्री का सेवन मात्र, इसका पढ़ना मात्र ही मनुष्य को इंटीग्रल योग रूपांतरण की उन अल्टीमेट ऊंचाइयों तक ले जा सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ ए गुरु। इस हद तक माने कह दिया है, क्योंकि सावित्री इज द मंत्रा। और मंत्र के अंदर कौन छिपा होता है? मंत्र के अंदर मंत्र दृष्टा भी छिपा होता है, और मंत्र के अंदर वह देवी या देवता भी छिपे होते हैं जिनका आवाहन किया जाता है। मंत्र इज ओनली ए बॉडी, और जब हम उसको रिसाइट करते हैं, जब हम उस पर ध्यान करते हैं, तो मंत्र दृष्टा भी और वह देवी भी हमारे सामने प्रकट होती हैं। सावित्री के मंत्र दृष्टा कौन है? सावित्री के मंत्र दृष्टा हैं श्री अरविंद। और किनका आवाहन हो रहा है? जगन माता, डिवाइन मदर का रूपांतरण के लिए। तो एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें हम एक साथ श्री अरविंद की चेतना को सम्मिलित रूप में पाते हैं। इट इज समथिंग वेरी रिमार्केबल। क्योंकि देखा जाए तो सावित्री किसकी कहानी है? सावित्री कहानी है डिवाइन मदर की कहानी है, जगन माता की कहानी है। लेकिन जगन माता की बहुत सारी कहानियाँ भारतवर्ष में, उनके अनेकों, हम अभी नव दुर्गा का एक बहुत सुंदर फेस्टिवल गया, और इस प्रकार की अनेकों कहानियाँ हैं। जगन माता के अनेकों रूप हैं, लेकिन जगन माता ने शरीर धारण करके धरती पर अवतरण किया हो, ये कहानियाँ नहीं मिलती हैं। हम सुनते हैं, रामायण में सुनते हैं, और फिर हरिवंश चरित में कहीं राधा का मेंशन आता है, लेकिन राधा कहा जाता है कि उन्होंने शरीर धारण नहीं किया था। एक मिस्टिक एक्सपीरियंस है, अनुभव है जो सत्य है, लेकिन उसको एक लीजेंड के माध्यम से प्रस्तुत किया, एक सत्य है जिसको एक पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। उसी प्रकार से हम जब माता सीता की कहानी पढ़ते हैं रामायण में, तो फिर भी वो पुरुष तत्व की ओर लीन करती है। तो डिवाइन मदर के इनकारनेशन, और उनमें सबसे पहला ये, क्योंकि अगर देखा जाए तो सृष्टि किसका प्रोजेक्ट है? सृष्टि वास्तव में डिवाइन मदर का प्रोजेक्ट है। अगर हम भारत की परंपरा में जाएं तो ईश्वर और शक्ति, ईश्वर तो वह है जो विटनेस है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु नालिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषा, वो सारी सृष्टि के दृष्टा हैं। लेकिन सृष्टा रूप में वो डिवाइन मदर है। वही सूर्य की शक्ति जब रेस के रूप में सारी संसार में आती है और हर चीज को रश्मि बन करके फूल को जगाती है, धरती के कण कण को प्रज्वलित करती है, उज्जवल बनाती है, मनुष्य के अंदर सुबह उठता है उत्साह जागृत करती है, रात की सारे क्लेश कष्ट सुबह हम उठते हैं तो एक कुछ क्षणों के लिए भूल जाते हैं। वह जो ऊर्जा है जो सूर्य से आकर धरती को जोड़ती है, वह है डिवाइन मदर, वह है सावित्री। तो सावित्री का प्रारंभ भी हम वहाँ से देखते हैं जहाँ पर श्री अरविंद बताते हैं सिंबल डॉन, महानिशा है संसार में। ये बात है 1920 से 1940-50 के बीच की बात है, सावित्री की रचना का काल। और उस समय क्या हो रहा था संसार में? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और दूसरे विश्व युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई थी। इंपीरियलिज्म का दैत्य, कम्युनिज्म, मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म का दैत्य, ये सब अपनी चरम सीमा पर, पॉजिटिविज्म, मेटीरियलिस्टिक थॉट, उस महानिशा में श्री अरविंद सावित्री का आवाहन कर रहे थे। मानो कोई गहन रात्रि में आने वाले सूर्य का आवाहन कर रहा। और वास्तव में सवित्र शब्द, सूर्य के अनेकों शब्द हैं, आदित्य हैं, अनेकों हैं, लेकिन उनमें एक शब्द है सवित्र। सवित्र इज द सन हिडन इन द डार्कनेस, इमर्जिंग आउट ऑफ द डार्कनेस। तो इस महा अंधकार में भी सावित्री से पहली चीज हम ये सीखते हैं बुक ऑफ बिगिनिंग में ही, कि महा अंधकार में भी एक महासूर्य छिपा हुआ है और वो स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को प्रकट करने के लिए। यही वो कहानी है ऋग्वेद में मार्तंड की, द 8th सन ऑफ, मैं कुंती कहने वाला था, 8th सन ऑफ मदर अदिति, जिसको उन्होंने कास्ट कर दिया है इस अंधकार में स्ट्रगल करके इमर्ज करने के लिए। और हम सब के अंदर वो सूर्य छिपा हुआ है, प्रकट होना चाह रहा है। और इसीलिए हम देखते हैं कि बुक ऑफ बिगिनिंग में, कैंटो 1 में ही एक और सृष्टि के प्रारंभ की स्टोरी है। इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। वो सूर्य अकेला है, अंधकार में छिपा हुआ है, देवता भी नहीं है,
तो वो अपने ही अंदर से पहले देवताओं को प्रकट करता है। यही हम लोग ऋग्वेद में पूरा पढ़ते हैं कि वह जो उस अवस्था में था जब देवता भी प्रकट नहीं हुए थे। देवता कौन है? हमारे सच्चरित्र, हमारे अंदर सुंदर गुण, इनका विकास होता है, वो देवत्व के रूप में आते हैं। और ये देवता फिर क्या करते हैं? हमको सहायक बनते हैं। हमें पहले अभी अर्धमूर्छित पशु मानव से मनुष्य मानव, अगर हम ये शब्द यूज करें अपने आप में एक रेयर स्पेसी है, और मनुष्य मानव से देव मानव तक ले जाने का कार्य ये देवता करते हैं। और देवता की जब मनुष्य को देव मानव तक की स्टेज तक पहुंचा देते हैं तो दिव्य मानव गढ़ने का काम डायरेक्टली डिवाइन मदर के हाथ में होता है। तो वो सारी स्टेजेस श्री अरविंद डिस्क्राइब करते हैं, और वह काम जो लेकर के स्वयं जगत जननी माँ धरती पर अनेकों इनकारनेशंस में आती हैं, उनका पहले इनकारनेशन की बात है। नॉट नेसेसरली फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट जिसकी कहानी आज तक प्रिजर्व की है, और वो है सावित्री। तो सावित्री की कथा को एक नया रूप देते हैं, कहते हैं ये एक सिंबॉलिक मिथ है। बहुत सारी हमारी कहानियां सिंबॉलिक हैं। सावित्री कौन है? सावित्री सूर्य की का ही प्रकाश, सूर्य का प्रताप, सूर्य की शक्ति, सूर्य की ऊर्जा, यानी डिवाइन कॉन्शियसनेस का एक एस्पेक्ट है जो पैसिव है, जिसकी बात हम लोग बार बार करते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, परमेश्वर। लेकिन उनका ऐश्वर्य जो धरती की ओर जाता है, सृष्टि की ओर जाता है, शी इज द पावर ऑफ द डिवाइन दैट क्रिएट्स। तो वो डिवाइन मदर की कहानी, उसकी जो पहली कहानी है हमारे ट्रेडिशन में जो आती है, वो सावित्री की कहानी है। और सावित्री शब्द से ही प्रकट हो जाता है कि वो शी इज़ द डॉटर ऑफ द सन, यानी सूर्य की शक्ति, सुपरामेंटल सन की जो डिवाइन पावर है, डिवाइन कॉन्शियसनेस है, दिव्य की जो शक्ति है, ईश्वर की जो शक्ति है, वह जो प्रकट होती है वो सावित्री है। किसके लिए आती हैं वो? सत्यवान के लिए। सत्यवान कौन है? ये हम सब हैं। तो सावित्री केवल डिवाइन मदर की कहानी नहीं है, वो हमारी भी कहानी है। सत्यवान कौन है? इस महा अंधकूप जंगल में अपने राज्य से निष्कासित हम सब लोग को कहा जाता है हम भगवान की संतान हैं, लेकिन जब चारों तरफ देखते हैं तो लगता है माता दिति की संतान, दैत्य ही राज्य कर रहे हैं। वो सुनने को तैयार नहीं है कि हम ईश्वर की संतान हैं। लेकिन ये रियलिटी है हमारी कि सत्यवान सत्य को धारण करते हैं, लेकिन यहाँ अचित अंधकार के जंगल में हम लोग फंसे हुए हैं, इग्नोरेंस के जंगल में। तो हमें छुड़ाने के लिए कौन आ रही है? डिवाइन मदर, उनकी ग्रेस आ रही है। तो ये हुई सावित्री सत्यवान की कथा, जिसके माध्यम से हमें देखा जाए तो सावित्री वास्तव में हम सब की भी कहानी है। हम सब अपनी कहानी को प्रारंभ कहाँ से करते हैं? बच्चे का जन्म हुआ, घर में खूब मिठाई बांटी गई, उसको एक विजिटिंग कार्ड जन्म होते ही थमा दिया गया, तो मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। आजकल थोड़ा शुरू हो गया है मेरी बेटी है, नहीं तो पहले बस बेटा, और उसको ये नाम से वो नाम, सरनेम, पहचान सब दे दिया गया, यहाँ तक कि तू क्या जॉब करेगा ये भी बता दिया गया। और पूरे जीवन वो अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट को भूल करके उस स्क्रिप्ट को जीता है, उस जीवन को जीता है जो वास्तव में उसका था ही नहीं। और तब जब तक उसको पता चलता है, वैसे मिडिल एज में एक ट्रांजिशन का टाइम आता है बाय द वे, जब ये कुछ प्रश्न आए थे रिसेंटली, तो मिड लाइफ में जैसे एडोलेसेंस में एक ट्रांजिशन का टाइम आता है, उसी तरह मिड लाइफ में ट्रांजिशन का टाइम आता है, जब भगवान कुछ ऐसी उथल पुथल करते हैं कि कहते हैं तू सोच, तू ओरिजिनल स्क्रिप्ट को करना चाहता है या अपनी तो कई लोग लेकिन अपने वो मोमेंटम से चल रही होती गाड़ी, वही एम्बिशन, वही, तो उसमें वो फंसे रहते हैं। वो कहते हैं नहीं अभी कौन ओरिजिनल स्क्रिप्ट इत्यादि को पढ़े। वो आती है, एक खटका आता है, और एक बार खो देता है तो फिर वो 70, 60, 70, 80 और 60 में सठियाना और 80 में दादाजी फोटो फ्रेम के लिए आप तैयार हो जाओ। तो ये हम लोगों की कहानी नहीं है। हमारी कहानी तो तब स्टार्ट होती है जब हमारी पहचान, कौन है हम? जगत जननी माँ भगवती की संतान है। किसका भय करते हैं हम? क्यों भय करते हैं? मृत्यु को हमसे भय खाना चाहिए। हमारे वे पूर्वज हैं, वे हमारे पूर्वज हैं जिनके सामने मृत्यु खड़ी हो जाती थी तो वो एक बार सोचती थी किसके सामने हम आ गए, युद्ध करें कि ना करें। हम क्यों इस तरह की दासत्व में आ गए? क्योंकि हम अपनी पहचान भूल गए। और ओरिजिनल पहचान केवल माता पिता ही नहीं, देश से भी नहीं होती है। देश एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और भारतवर्ष में तो जन्म लेना एक गौरव की बात है, क्योंकि एक ऐसा देश है जहाँ की संस्कृति से विरासत में हमको दिव्यत्व मिलता है। ये अलग बात है कि हम उसको यूज़ करते हैं कि नहीं, ये वी गेट इट एज एन इनहेरिटेंस, परहैप्स टू मच एंड वी आर नॉट एबल टू कंटेन इट। लेकिन फिर भी हमारी ओरिजिनल पहचान कहाँ है? सृष्टि के भी पहले
जो डिवाइन है वो हमारे माता है। हम कहते हैं ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो कौन है हमारे? क्या वो मेरा सरनेम है पांडे, किसी और पर नहीं कह रहा हूँ, कि क्या हमारे पिताजी थे हरिश्चंद्र पांडे, ये हमारी पहचान है? हाँ, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, बहुत सुंदर एक व्यक्तित्व। हमारी पहचान तो वह जगत जननी माँ है, साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर है। जिस दिन हम इस पहचान को प्राप्त कर लेंगे उस दिन हमारे आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ये सारे भय से मुक्त हो जाएंगे, चिंताओं से जो ग्रसित जीवन है, मुझे करना है, कैसे करूं, ये करूं, वो करूं। डिवाइन मदर का बच्चा डरता है, भयभीत होता है, चिंताओं से मग्न ग्रस्त रहता है, तो पहले वो हमारी पहचान बताते हैं। सत्यवान कौन है, सावित्री कौन है, तो अशुपति कौन है, कौन इस सावित्री की शक्ति को धरती पर स्थापित कर सकता है? क्योंकि उस शक्ति को वहन करना ये जड़ तत्व नहीं कर सकता है। लोग अक्सर कहते हैं भगवान है, प्रकट क्यों नहीं आ जाता, हम देख क्यों नहीं पाते हैं? तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा उत्तर है, आप 10 मिनट एक मोमबत्ती की ओर टकटकी लगा के देख लो, उस परम सूर्य को देखने की बात बाद में करेंगे। और इस सूर्य को भी मत देखना जो मटेरियल सूर्य है, क्योंकि बहुत जल्दी बिना एक्लिप्स के भी आंख अंधी हो जाती है। तो हम उस ओर चले जाते हैं, क्योंकि वो जो गेट बैक टू द ओरिजिनल, तो वो जो डिवाइन, हम प्रकाश को, उस डिवाइन की, उसको हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन एक दिन आएगा और आना चाहिए जब हम पूरी तरह इस जड़ तत्व के अंदर ईश्वर प्रकट हों और हम उनको देख सकें। और उसकी तैयारी करने पहले कोई तो होना चाहिए जो उस डिवाइन पावर को, उस डिवाइन नॉलेज को अपने अंदर रिसीव कर सके। और उसके लिए जो तपस्या चाहिए, अखंड तपस्या, दैट इज अश्वपति। अश्वपति कौन है? अश्व, हॉर्स पावर। हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि वैदिक ऋषि अश्व और गो, उनको वो मांग रहे थे, तब हमको समस्या होती है कि ये तो कोई मिथोलॉजिकल बातें हो रही हैं। जब ये समझाया जाता है कि गो प्रकाश है और अश्व शक्ति है, तो फिर ये बात क्लियर हो जाती है कि अश्वपति कौन है? वो तपस्वियों के तपस्वी हैं। और उनकी तपस्या पूरी सावित्री में हम देखते हैं कि 3 पार्ट्स में है सावित्री। पार्ट 1 चलता है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, उसमें पूरी अश्वपति की तपस्या है। ऐसी तपस्या जिसके बारे में सच में कहा जा सकता है ना भूतो ना भविष्यत। श्री अरविंद के जब हम रिकॉर्ड्स ऑफ योगा पढ़ें और जब हम उनकी जीवन को पढ़ें, 24 वर्ष 1926 से श्री अरविंद 1950 तक के कमरे में क्या कर रहे थे? केवल हम बाहर से भी पढ़ें, घंटों किस प्रकार से वो किसका आवाहन कर रहे थे, किसको देख रहे थे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमको सावित्री में पहली बार मोस्ट ऑथेंटिक बायोग्राफी श्री अरविंद की अश्वपति की तपस्या के रूप में देखने को मिलती है। वो क्या देखते थे, किन से मिलते थे? अब ये एक लंबा विषय अपने आप में, पूरी हम लोग, और वहाँ पे वो यूट्यूब पर है सारी ग्लिम्पसेस ऑफ श्री अरबिंदोज लाइफ, ये सारी चीज़ें वो क्या कर रहे थे उस समय। और उस समय हम देखते हैं कि अश्वपति की तपस्या के माध्यम से श्री अरविंद उस परम सत्य को उतार रहे थे, उसमें चेष्टारत थे, जिसका अभी देयर इज नो सेंटर, नो बेस इन ह्यूमन माइंड। मानव मन उसको नहीं उतार सकता है, क्योंकि वो अगर उतर पड़ेगा तो वो टूट जाएगा, खंड हो जाएगा। इसीलिए यज्ञवल्क्य से जब प्रश्न किया जाता है कि वो सेल्फ कहाँ से आया है, पहले वो प्रश्न करते हैं ना, जब अग्नि डिम हो जाती है तो कौन है? तो मून है। मून डिम हो जाता है तो सन है। सन की प्रकाश भी नहीं रहता है तो कौन है? तो अल्टीमेटली सेल्फ। सेल्फ का प्रकाश कहाँ से आता है? तो अश्वपति कहते, तो यज्ञवल्क्य कहते हैं कि यदि तुम ये प्रश्न एक प्रश्न और करोगी तो तुम्हारा मस्तक सहस्र खंडों में विभक्त हो जाएगा गार्गी, क्योंकि वो मानव मन के परे एक ऐसा सत्य है, छिपा हुआ है, एक दिन प्रकट होगा, पता नहीं मिलेनियम्स के बाद। श्री अरविंद उस सत्य को उतारने के लिए चेष्टारत थे। और उसको उतारने के लिए सबसे पहले कौन धारण करेगा? उन्होंने स्वयं अपनी देही यष्टि प्रदान की थी। तो वो सारी यात्रा जिसमें बार बार वो सुपरमेंटल ट्रूथ उतरता है, तो एक तरह से अब ये इसमें एक हमारी और डिवाइन मदर के साथ की कहानी में श्री अरविंद जुड़ जाते हैं। श्री अरविंद कौन है? इट्स द डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव इन मैन। उन्हीं की तपस्या के फलस्वरूप डिवाइन मदर आकर इस धरती पर पांव धर सकती हैं, क्योंकि उस शक्ति को अपने अंदर, जड़ तत्व के अंदर धारण करने का साहस, उसको धारण करने की शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता अखंड तपस्या के द्वारा श्री अरविंद उसको प्राप्त करते हैं और वो आती हैं। लेकिन केवल एक श्री अरविंद रूपांतरित हो जाएं इतना काफ़ी नहीं है। तो ये सारे संसार के अंदर रूपांतरण होना है।
और यदि रूपांतरण होना है तो हमको संसार को जानना है, जिस चीज मटेरियल के ऊपर काम करना है। अक्सर लोग कहते हैं वर्ल्ड नॉलेज की क्या जरूरत है, वर्ल्ड फोर्सेस के प्ले की। अगर केवल निर्वाण के लक्ष्य है तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हमको संसार से काम करना है, संसार में काम करना है, तो वी मस्ट नो हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स। तो सावित्री के अंदर हम देखते हैं कि वर्ल्ड के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इंजिन्स हैं, सब इंजिन्स हैं, उसकी विकास की प्रोसेस अणु से लेकर के भविष्य तक क्या होने वाला है, मनुष्य तक और उसके आगे कैसे ऑपरेट करती है, एक एक चीज अणु अणु के अंदर कैसे वो ऊर्जा कार्य कर रही है, वो सब कुछ एक दिव्य दृष्टि से कैसे देखते हैं, कैसे भगवान इस संसार को देखते हैं। एक तो है कि वैज्ञानिक कैसे देखते हैं, लेकिन भगवान इस पृथ्वी को कैसे देखते हैं, पृथ्वी का जो स्पेशल प्लेस है, उसका जो विशेष महत्व है, क्या कारण है कि पृथ्वी पर ही हमेशा भगवान आते हैं, मंगल ग्रह पे क्यों नहीं चले जाते, वीनस पे क्यों नहीं चले जाते, भगवान के लिए क्या है कहीं भी चले जाएं, धरती के ऊपर ऐसा क्या हो रहा है। तो श्री अरविंद बताते हैं धरती के ऊपर एक डिवाइन एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और वो डिवाइन एक्सपेरिमेंट है जड़ तत्व को दिव्य तत्व में रूपांतरित करना, क्योंकि जड़ तत्व का ओरिजिन दिव्य तत्व है, देयर हैज टू बी ओनली वन सब्सटेंस, और उसको कैसे वापस रूपांतरित करें, लेकिन विदाउट लूजिंग द इंडिविजुअलिटी। एक फ्रेम जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसी के प्रयोजन में तब हम विकास क्रम को देखते हैं। तो फिर इवोल्यूशन के पहले इन्वोल्यूशन, सब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग इज देयर इन सावित्री। तो ये अब अगेन बहुत अति संक्षेप में हम लोग इस पर आगे बढ़े हैं। ठीक है, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इससे हमें क्या, आगे क्या होने वाला है, ये तो अब तक की कहानी सृष्टि की लिख दी गई है। और कहाँ से प्रारंभ होती, इन द होरी पास्ट, जब सावित्री और सावित्री जैसे ना जाने कितने अनेकों योगियों ने, ऋषियों ने भारतवर्ष में, दधी जी की कहानी हम सुनते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी हड्डियां दे दी थी वज्र बनाने के लिए, अनेकों तपस्वियों से पोषित इस भारत भूमि में, पूरे विश्व में अर्थ में एक विशेष स्थान भारत भूमि का है। तपोभूमि है ये, यज्ञ भूमि है ये, योग भूमि है ये, और यहाँ इसलिए ये विशेष भूमि है ताकि यहाँ पर एक जो एक्सपेरिमेंट अल्टीमेटली जनरलाइज होगा पूरे सृष्टि में, ये भारतवर्ष में पहले होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये डिवाइन मैन बनाने का कारखाना है, जहाँ एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक बार बनेगा तब फिर पूरे संसार में आएगा, यहाँ नहीं बना तो कहीं नहीं बनेगा। और इसके साथ ही ये भी चीज़ जुड़ी हुई है, अक्सर लोग कहते हैं भारतवर्ष में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। अरे जो सक्षम है उसी के पास तो प्रॉब्लम होंगी, जो असक्षम व्यक्ति है, निर्बल दुर्बल, उसके पास भगवान कहते तू थोड़ी देर भोग साधना में लिप्त रह, जा तेरा जन्म दे देता हूँ मैं स्विट्जरलैंड में, जा तू कहीं और चला जा, सॉरी मतलब कोई सब राष्ट्र अच्छे हैं, जा तू अमेरिका में रह के भोग विलास में रह, क्योंकि तू अभी इन्फेंट है। जब वो बड़ा होता है, इन्फेंट युवा होता है, कहता है हे प्रभु अब मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। कहते जा वहाँ दंडकारण्य में अनेकों राक्षस हैं, जाओ किष्किंधा में पशु हैं, उनको टेम कर, राक्षसों का अंत कर, अपने अंदर भी और बाहर भी जा, भारत भूमि में तेरा जन्म हो। तो ये सारी कहानी अंत में कहाँ जा रही है, सृष्टि के प्रारंभ की कहानी तो हम सब सुनते हैं, पुराणों में भी है, श्री अरविंद भी वैसी प्रारंभ करते हैं, जब कुछ भी नहीं था, असद और सद दोनों के परे वो महानिशा थी, तो वहाँ से प्रारंभ होती है कहानी, लेकिन जाएगी कहाँ। जितने भी जगह हम पढ़ें, जिसका एक मोस्ट अल्टीमेट सोर्स यदि संसार में कोई है तो भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण में भी वो लास्ट में ये वर्णन आता है कि कल की अवतार आएंगे और म्लेच्छों का नाश करेंगे। म्लेच्छों का नाश तो हम देखते हैं कि श्री अरविंद ने, म्लेच्छ कौन है, जो इधर उधर से आए थे और भारतवर्ष में जिन्होंने स्नान करने की जरूरत नहीं है, बाहर जेंटलमैन दिखना चाहिए, अंदर आप जैसे भी रहो, गंदे रहो, जैसे भी रहो, लेकिन बाहर आपकी वाणी ऐसे गुड मैनर्स होने चाहिए। तो ये सब उसका जो नाश किया, एक्चुअली फोर फ्रंट ऑफ फ्रीडम फाइट में श्री अरविंद ने खड़े होकर, ही वॉज द फ्रंट एंड द लीडर, और सब कुछ जिस पर चल के भारत को आज़ादी मिलेगी वो सब उन्होंने दे दिया, सब लिख करके चले गए थे। तो कल की अवतार में हम देखते हैं कि वो घोड़े पर आएंगे, तलवार लेके आएंगे और खूब वृष्टि होगी, जलमग्न हो जाएगी पृथ्वी, और फिर संसार में एक नया युग प्रारंभ होगा, एक काइंड ऑफ एब्रप्ट एंडिंग। श्री अरविंद उस एब्रप्ट एंडिंग को आगे ले जाते हैं। सावित्री की ओरिजिनल स्टोरी में भी हम देखते हैं कि एक एंडिंग होती है, बड़ी सुंदर एंडिंग होती है। क्या है, सत्यवान अंततः मृत्यु के पास से मुक्त हो जाता है। मृत्यु क्या है, मृत्यु वो सब कुछ जो हमारी सीमा के परे है। इसीलिए कहते हैं ना कि मृत्यु के पार कौन गया, किसने देखा।
जो कुछ हमारी सीमा के परे है, यदि व्यक्ति सचेत हो जाए तो उसको मृत्यु का भय वैसे ही चला जाएगा। वो देखेगा कि मृत्यु कुछ नहीं होती है। शरीर छोड़ा, बाय बाय किया, देखा कि अरे कितने सुंदर ढंग से जा रहा हूं मैं, तुम लोग क्यों रो रहे हो, मैं बड़ा खुश हूं, प्रसन्नचित हूं, देखने लगेगा। अगर वो देख सके आत्मा को इस प्रकार से निकलते हुए, वो हॉरर मूवीज की तरह नहीं, पर रियल सोल, जो दिव्य अंश है हमारे अंदर, द सोल इज ऑलवेज डिवाइन। इवन जो सबसे विकेट से विकेट व्यक्ति के अंदर भी सोल इज द डिवाइन एसेंस, डिवाइन नेचर को धारण किए, उसको प्रकट होना है। तो फिर मृत्यु का भय क्यों रहेगा? लेकिन हम देख नहीं पाते। तो मृत्यु एक सिंबल है जो जन्म से हमारे साथ चलती है। और वो किस चीज का सिंबल है? वो एक अंधकार, अचित ज्ञान, जिसकी पट्टी, ओरिजिनल कैटरैक्ट, जिसको लेके हम जन्म लेते हैं। लेकिन ये हमारा बिगिनिंग नहीं है और हमारा एंड नहीं है। इसी कुछ पंक्तियां पढ़ लें हम लोग, क्योंकि समय का, सावित्री एक ऐसा समुद्र है जिसमें एक बार व्यक्ति जाए तो बस छोड़ने की इच्छा नहीं होती। तो ये पैसेज है, नाइट इज नॉट अवर बिगिनिंग नॉर अवर एंड। एक क्षण, नाइट इज नॉट अवर बिगिनिंग। हाँ, आ गया, ये पेज 600 पर है सावित्री में। श्री अरविंद, अक्सर हम सुनते माया, माया ने इस संसार की रचना की। प्रश्न उठता है कि ये कौन है माया जिन्होंने ब्रह्म को भी भ्रमित कर दिया, जिनके कारण हम सब उलझ गए एक सो कॉल्ड इल्यूजन में। ये कौन सा इल्यूजन मेकर है जिसने हमें इल्यूजन में डाल दिया? और डाला तो क्यों डाला, स्वीकृति क्यों दी उन्होंने, जो माया के अधीश्वर हैं? तो यहां पर श्री अरविंद बताते हैं, बट माया इज ए वेल ऑफ द एब्सोल्यूट। भगवान ने अपने मुख पे आंचल डाल दिया, बहुत प्रचंड सूर्य है, और माया को काम दिया कि धीरे 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 आंचल को हटाना। क्योंकि यदि एक साथ आंचल हट गया, उसका मुख एक ज्योत है, घूंघट ये संसार, घूंघट में वो छुप गया, मुख पर आंचल डाल। आंचल वो माया है। लेकिन मिस्टिक्स कई बार क्या करते हैं, वो बलात् प्रोसेसेस के द्वारा घूंघट हटा देते हैं। परिणाम क्या होता है? हा हा करे गिरे पड़े, नहीं मुझे इस संसार में नहीं आना है। क्योंकि वो बट एक प्रोसेस है इवोल्यूशन की। क्रिएशन में एक विजडम काम कर रही है, प्रज्ञा, जिसकी बात दीदी ने प्रारंभ में की। वो प्रज्ञा क्या कर रही है? उत्तरोत्तर स्वयं को रिवील कर रही है। सारा जो विकास क्रम है इसके द्वारा एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन की ओर जा रहा है। तो जब अगर हम धैर्य रखें और पूरी प्रोसेस के थ्रू जाएं, लेकिन धैर्य के साथ, अभिप्सा के साथ, त्याग के साथ, समर्पण के साथ। त्याग क्या? वह जो हो चुका है वो हो चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट, चरेवेती चरेवेती। तो हम देखेंगे धीरे धीरे ये माया क्या करेंगी, स्वयं मायापति को प्रकट करेंगी। लेकिन केवल वहां नहीं, यहां भी यह वह। तो वो भाव है, बट माया इज ए वेल ऑफ द एब्सोल्यूट, ए ट्रूथ ऑकल्ट हैज मेड दिस माइटी वर्ल्ड। ये छलना नहीं है संसार। ये देखिए कहाँ से हम लोग, ये अशक्त वाणी जिसके कारण ये सब लोग कहते हैं भारत से मुक्ति कैसे मिली, ये अंग्रेजों से मुक्ति कैसे मिली, स्वतंत्रता कैसे मिली। कोई ये नहीं बताता है कि हम गुलाम हुए कैसे। ये अर्जुन और भीष्म पितामह का देश, अजात शत्रु का राष्ट्र, परीक्षित, जन्मेजय, ऐसे योद्धाओं का, विक्रमादित्य, ये राष्ट्र कैसे पतन की ओर चला गया? मायावाद एक कारण। शक्ति उपासना समाप्त हो गई। हम लोग केवल चल खुसरो घर आपने, अब रहना भाई विदेश। ये विदेश है, विदेश है। तो विदेश में व्यक्ति जाता क्यों है? वहाँ सुंदर अपने देश के बीज बोने के लिए। थोड़ी कोई विदेश से प्रभावित होकर फिर कह अरे अरे कहाँ है मेरा देश। वो विदेश में जाता है अपने देश के बीज बोने के लिए। द इटर्नल्स विजडम एंड सेल्फ नॉलेज एक्ट इन इग्नोरेंट माइंड एंड इन द बॉडी स्टेप्स। द इनकॉन्शियंट इज द सुपर कॉन्शियंट स्लीप। अचित अंधकार भी वास्तव में कौन है वहां? विष्णु भगवान की महानिद्रा है। अब आगे, ऑल हियर इज ए मिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्ररीज, डार्कनेस ए मैजिक ऑफ सेल्फ हिडन लाइट। कोई ओरिजिनल डार्कनेस है ही नहीं। हमारी दृष्टि की सीमाएं तो हम कहते हैं अंधकार है। कैन देयर एवर बी एन ओरिजिनल डार्कनेस? ये एक्चुअली एक इम्पॉसिबिलिटी है, इवन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी दृष्टि की सीमाएं तो हम कहते हैं अंधकार है। व्हाट इज इवन ब्लैक होल?
जो अल्टीमेट सिंबल है डार्कनेस का। ब्लैक होल क्या है? इट इज टीमिंग विद लाइट। लाइट इतनी डेंस है कि वो बाहर नहीं आ रही है। तो डार्कनेस इज ए मैजिक ऑफ सेल्फ, ए मैजिक ऑफ सेल्फ हिडन लाइट। अब इन सब का देखिए कितनी प्रैक्टिकल चीज है। अगर हम महाअंधकार भी देखें अपने जीवन में, संसार में, बाहर, जैसे लोग कई बार कहते हैं अभी प्रलय आ गई, हर दूसरे दिन प्रलय आ जाती है। 2000 में एक बार डूम्सडे आया था, फिर अलग अलग समय पर, फिर कोई गवर्नमेंट बदल जाती है, लोग कहते हैं प्रलय आ गई। मानो पहले गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी थी, सब लोग को डूम्सडे दिखाई देने लगता है। पता नहीं ये क्या मानसिकता है भारतवर्ष में, इतना अच्छा काम हो रहा है लेकिन डूम्सडे दिखाई देने लगेगा। अब हम लोग पता नहीं प्रलय के बड़े शौकीन है, या तो खुद बहुत थके हारे मनुष्य, अब चलो प्रलय ही आ जाए हमें एस्केप कर दे लेकिन सत्य नहीं है, संसार प्रलय के लिए नहीं बना है, यह संसार वास्तव में दिव्य के उद्घाटन के लिए बना है। तो यहाँ पर सफरिंग सम सीक्रेट रैप्चर्स ट्रेजिक मास्क। पीड़ा क्या है? आनंद की तैयारी है। पीड़ा क्या करती है? हमारे कंफर्ट जोन से हमको निकालती है, तोड़ डालती है वो सारे सीमाएं जिसके अंदर हम कह रहे थे बहुत अच्छा है भगवान, तो बड़ा कृपालु है, तूने देख हमें सब दे दिया, घर द्वार, बच्चे बच्चे कच्चे, नाती नातिन, पत्नी पति। भगवान कहते हैं अच्छा चैप्टर 2 सब ले लो एक बार। वैसे हम कहते हैं सब तेरा है, सब तेरा है, जब लेने की बारी है तू इतना क्रूएल है, मेरी चीजों को ले लिया। तब जब भगवान सब ले लेते हैं, सावित्री में एक लाइन है, हेवेंस वाइजर लव रिजेक्ट्स द मॉर्टल्स प्रेयर। तो कहते हैं अब चल, अब तू नया खेल शुरू कर। तो वास्तव में क्या है जिसको हम सफरिंग सफरिंग कहते हैं? सफरिंग नवनिर्माण की एक पहली स्टेप है, जो अपने आप को रीइन्वेंट नहीं करना चाहता। यही तो फिनिक्स बर्ड की कहानी है, ईगल की कहानी। जो स्वयं को रीइन्वेंट नहीं करना जानता वो वास्तव में मृत्यु तुल्य है। वो तो वैसी मृत्यु में है जो केवल अपने कहते हैं ना बाप दादाओं के धन पे जो जी रहा है, वो तो मृत्यु तुल्य जीवन जी रहा है। तो यहाँ पर रीइन्वेंट, सफरिंग क्या है? ट्रेजिक मास्क डिलाइट का। वो कहते नहीं एक बहुत बड़ा आनंद है, तू नहीं वंचित है उससे। कौन सा आनंद है? मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, संसार का सम्राट हूँ। अरे तू एक इस आनंद से वंचित है कि रास्ते में रुक करके एक स्टॉल पे जाके नुक्कड़ पे चाय कुल्लों में लेके कैसे पी जाती है, तो इसको नहीं जानता, क्योंकि तू बहुत सारी बेड़ियों में जकड़ा है और तू सोच रहा है मैं राज्य कर रहा हूँ। तो यहाँ पर श्री अरविंद हमें बता रहे हैं सफरिंग सम सीक्रेट रैप्चर्स ट्रेजिक मास्क एंड डेथ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ परपेचुअल लाइफ। Death is a stair, a door, a stumbling stride the soul must take to cross from birth to birth, a great defeat pregnant with victory. शेरविंद समराइज करते हैं, बताते हैं ये पुनर्जन्म की जो यात्रा है, ये पाप पुण्य का विधान नहीं है। भगवान को भी हमने अपने सीईओ की तरह एक हाथ में रॉड, दूसरे में एक कैरेट दे करके बिठा दिया। अच्छे काम कर रहा है, कैरेट खा ले, पहले हेवन में खाना, फिर धरती पर आकर के एक रिच फैमिली में जन्म लेके, मानो रिच फैमिली में जन्म लेना कैरेट है, जबकि सच तो ये है कि वो कई बार पनिशमेंट है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। एक जैसे बाइबल कहती है ना कि इट्स ईजियर टू मेक ए कैमल पास थ्रू द आई ऑफ ए नीडल देन टू मेक ए रिच मैन टर्न टू गॉड। तो ये तो हम अपने ही वैल्यू उसको भगवान पे थोप देते हैं। उनको भी और कोई काम नहीं है सिवाय जज करने के। अब भगवान जज करेगा तो किसको जज करेगा? वो तो जज करेगा तो वो सारी सृष्टि वही है, ये उनकी आउटर बॉडी है, वो जज करेंगे अपने। क्या हम अपनी उंगलियों को, अपने हाथ को जज करते हैं? अगर उसमें कोई रोग हो जाए तो हम उसको ठीक करते हैं। तो ये जो पुनर्जन्म की यात्रा है, ये विकास की यात्रा है। ठीक वैसे जैसे एक विकास क्रम बाहर चलता रहता है तो हर फॉर्म्स टूटते हैं तो नए फॉर्म्स आते हैं, इसके द्वारा वी गेट ए सेकेंड चांस, ए थर्ड चांस। वो फिल्म थी ना जिसमें कहते हैं एवरीबडी मस्ट गेट ए सेकेंड चांस। व्हाई ओनली सेकेंड चांस? वी गेट मिलियन चांसेस टू ग्रो एंड इवॉल्व। अब चॉइस ये है कि हम धीमी गति से स्नेल पेस पे इवॉल्व करेंगे, नॉर्मल प्रोसेस, या लीप्स एंड बाउंड से इवॉल्व करेंगे, योग की प्रोसेस। योगा इज कंसंट्रेटेड इवोल्यूशन। ए विप टू लैश अस टुवर्ड्स अ डेथलेस स्टेट। मृत्यु के पीछे भी भगवान छिपे हैं, पीड़ा के पीछे भी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? डेथलेस स्टेट की ओर। कहते हैं ना कि वो बहुत दुख पड़ता है, मुश्किलें मुझ पर गिरी इतनी की आशा हो गई, तो कुछ समय बाद आदमी हंसने लगता है, कहता है अरे ये छोटे मोटे दुख अब मैंने तो बड़े बड़े देख लिए, अभी क्या है ये।
तो उस प्रकार की चीज है कि ए whip to lashes towards a deathless state, the inconscient world is the spirit's self-made room, eternal night, shadow of eternal day. Night is not our beginning nor our end. फिर हमारा प्रारंभ कहाँ से? हम तो रोज देखते हैं कि सूरज डूब जाता है. वैज्ञानिक बताएंगे थोड़ा सा तो बाहर निकलो, अपनी पृथ्वी से बाहर निकलो, तब तुम देखोगे कि वास्तव में सूरज उगता डूबता नहीं है. ये तुम्हारी दृष्टि की सीमा है. वास्तव में तो धरती सूरज की तरफ मुंह कर लेती है या सूरज के परे दूसरी तरफ मुंह कर लेती है. जब सूरज की तरफ मुंह करती है तो कहती है अब दिन है. तो हम सबको क्या करना है इटर्नल डे के लिए? वी हैव टू कीप आवर फेस, आवर आईज, एवरीथिंग टर्न टुवर्ड्स द लाइट एंड द सन. और ये स्मरण रखना है कि नाइट इज नॉट अवर बिगिनिंग नॉर अवर एंड. स्पेस में चले जाएं तो सूरज सदैव निकला हुआ है. शी इज द डार्क मदर इन हुज वूम वी हैव हिड. डार्क मदर कौन है? दिति. दैत्य कौन है? डिवीजन, चिल्ड्रन ऑफ डिवीजन. हमारा प्रारंभ वहां से होता है, एक डिवाइडेड पहचान से, एक सीमित पहचान से. तो बाई बर्थ वी आर इन ए स्टेट ऑफ डिवीजन, और स्टेट ऑफ डिवीजन इज दैत्य. लेकिन अदिति, अदिति, अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ यूनिटी, ऑफ इंफिनिटी, ऑफ फ्रीडम, ये देवत्व है. She is the dark mother in whose womb we have hid, safe from too swift a waking to world pain. We came to her from a supernal light. By light we live, and to the light we go. We are eaters of light. We breathe light. और सच में भौतिक जगत में भी यही सत्य है. कैसे ये सत्य है? संसार में कोई एक भोज्य पदार्थ बता दीजिए जो सूर्य के बिना डेवलप कर सकता है. इवन मशरूम्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन, नीड दैट एनर्जी. वास्तव में वी आर स्टिल ईटर्स ऑफ लाइट. फर्क इतना है कि बड़े इनडायरेक्टली प्लांट, फिर कुछ और भी ज्यादा 2-4 स्टेप इनडायरेक्ट ले लेते हैं. एनिमल, पहले एनिमल प्लांट को खाएगा फिर हम एनिमल को खाएंगे. भैया क्यों इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? प्लांट लाइफ में ही उतनी ऊर्जा है, डायरेक्ट ऊर्जा है. एनिमल के अंदर जाके वो रेज, फियर इसमें परिवर्तित हो रही है, उसके बाद तुम ले रहे हो. प्लांट खा लो, उसमें शुद्ध ऊर्जा है जीवन की. बट ए डे विल कम जब हम लोग सीधा वी विल लिव बाय लाइट, क्योंकि यही हमारा सत्य है. और अंत में हम लोग, क्योंकि समय का अभाव है, तो भविष्य के बारे में उन्होंने क्या लिखा है? बहुत कुछ लिखा है. सावित्री पूरी भविष्य की रचना है. जो बूंस हैं, जो वरदान सावित्री मांगती हैं सावित्री सत्यवान की कथा में, उनको श्री अरविंद ने एक इतना व्यापक रूप दे दिया है. और सब कुछ बुक 11, बुक ऑफ सुप्रीम कंज्यूमेशन, द सोल चॉइस. लेकिन इसका चुनाव हमको करना है. मार्ग क्या है, चुनाव क्या है, ये सब कुछ सावित्री के अंदर है. क्या हमको करना है, किस तरह से हम वहाँ पहुँचेंगे, धरती का भविष्य क्या है. श्री अरविंद एक ल्यूमिनस फ्यूचर संसार के लिए लेके आए हैं. और यहाँ तक उन्होंने कह दिया, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मैन बट मैन डिपेंड्स ऑन इट. इसका एक दूसरा पार्ट है. मतलब ये कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मैन, मतलब मनुष्य नहीं तो कैसे भी, ये तो ओरिजिनल प्लान है भगवान का. इसको मनुष्य नहीं तो कोई और स्पेसीज, डॉल्फिन भी किनारे खड़ी हुई हैं. किनारे नहीं, हम किनारे खड़े हैं, वो समुद्र में तैर रही हैं, वेट कर रही हैं. मनुष्य के ऊपर प्रलय आएगी तो हम इवॉल्व करेंगे. 75 to 80% इंटेलिजेंस मानो भगवान ने फैक्ट्री के अंदर तैयार करके कहा है तुम रुक जाओ, माई सेकेंड प्लान बी. लेकिन मनुष्य इस भविष्य पर निर्भर करता है, क्योंकि यदि हम एक और हमारे सामने वह चिंतन है जो विनाशकारी है. विनाशकारी क्या चिंतन है? मैन लिव्स बाई ब्रेड. क्राइस्ट आके कह गए कि मैन डज नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन, लेकिन फिर भी मैन लिव्स बाई ब्रेड. तो उस ब्रेड के लिए वायलेंस फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन. बंदूक उठाओ और संहार करो ब्रेड के लिए. भारतवर्ष क्या कहता है? इवन इफ यू लीव द ब्रेड, डू नॉट, ये भी बाइबल की कहानी इंसिडेंटली, कि डू नॉट एक्सचेंज योर बर्थ राइट फॉर ए पॉट ऑफ पॉरिज. रोटी छिन जाने दो, लेकिन अपने आत्म चैतन्य को, विवेक को वो मत छीनने दो. ये भारतवर्ष की पहचान है. बिकॉज हम जानते हैं कि द बॉडी इज स्टिल ए पेरिशेबल थिंग, बट द ट्रूथ, जो सोल है वो इमॉर्टल है. लेकिन अब हम उस स्थान पे पहुंच गए विकास क्रम की अवस्था में जहाँ इवन द बॉडी शैल टेस्ट डिलाइट एंड इमॉर्टेलिटी. तो वो वर्णन पेज 55 पर
इसके बाद हम लोग रुकेंगे क्योंकि ये तो अथाह अनंत है। Thus will the mass transcendent mount his throne। जगह जगह सावित्री में भविष्यात्मक दर्शन है। तो ये कैंटो है बड़ा अद्भुत, द सीक्रेट नॉलेज। जो कुछ मन नहीं जानता, जो कुछ इंद्रियों से ग्रास्प नहीं होता, वो सब इसके अंदर है। वेदांत है, तंत्र का सार है, और अंत में इसमें हम देखते हैं इसमें जगह जगह भविष्यवाणी है। तो भविष्यवाणी क्या है? दस विल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन। ये किसकी भूमि थी? कहते तो हैं हम सब भूमि गोपाल की, लेकिन ईगो को बैठा रखा है हमने। हम हैं राजा, भगवान आते हैं पहले, कंस मामा उतर जाओ, नहीं राज्य मेरा है। भेजता है वो तरह तरह के डिजायर्स, काम क्रोध नष्ट करने के लिए उस दिव्य शिशु को। शिशु तो बढ़ता रहता है। अंत में भी कंस कहता है कि नहीं नहीं, मैं थ्रोन नहीं दूंगा, मर जाऊंगा लेकिन अपनी गद्दी नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान कहते चल ठीक है, मुझे ही तोड़ना पड़ेगा। रेसल ऑफ गॉड एंड द एम्ब्रेस ऑफ गॉड, और अंत में थ्रोन उन्हीं की है। दस विल द मास ट्रांसेंडेंट, छिपा हुआ है पर राजा वही है, भेष बदल के घूम रहा है। When darkness deepens strangling the earth's breast, कब आएंगे भगवान? ढोल बाजी के अनाउंसमेंट्स के साथ नहीं आते, मनुष्य आते हैं। बिलबोर्ड्स लग जाते हैं, खूब बाजे गाजे के साथ, बाजे गाजे के साथ दूल्हे की बारात आती है, और उसका हश्र अगले दिन से क्या होता है ये सब जानते हैं। भगवान चुपचाप आते हैं जब सब सो रहे होते हैं। कंस भी सो गया है, जेल के अंदर आते हैं और सब बंधन से मुक्त कर देते हैं। When darkness deepens strangling the earth's breast and man's corporeal mind is the only lamp, as a thief's in the night shall be the covert tread। यही एक त्रासदी है हमारी। भगवान को चोर की तरह आना पड़ता है। कोई तो दरवाजा खुलाओ, कहीं ये भूल से कह दे भगवान कहाँ हो, बस इतना काफ़ी है। हम तो मृत्यु का आह्वान करते रहते हैं, उन सब चीज़ों का जो मृत्यु की ओर ले जाएंगी, और ऊपर से सब चीज़ें होती हैं तो भी कहते हैं अरे इससे तो अच्छा जंजाल छूट जाए, मर जाना अच्छा है। तो मृत्यु देवता आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं, हमारे बेटे कुनवा पोते नाती सबको देख के जाना है। एक विंडो खोल दें, एज ए थीव्स इन द नाइट। वो मृत्यु की घड़ी जब आई तो बेटे नारायण की थी रट लगाई। तो इस तरह की हम अगर, इसीलिए भारतवर्ष में परंपरा थी कि बेटे बेटी का नाम भगवान के नाम पर, क्या पता इसी के बहाने भगवान आ जाए। टू मच, टू मच टू ब्राइव गॉड, बट यू नेवर नो कब वो कहाँ आ जाए। एज ए थीव्स इन द नाइट शैल बी द कोवर्ट ट्रेड ऑफ वन हु स्टेप्स अनसीन इनटू हिज हाउस। उन्हीं का घर है। कहते हैं ना ये टेम्पल आपका है, लेकिन उसके बाद हम कहते हैं आपका बाद में है, पहले मेरे बाप का है। ये आपका है, भगवान का है। हमें केवल उन्हीं का निर्देश सुनना है। यही तो गीता वहाँ से प्रारंभ होती है। ये सब तेरे मातुल गुरु ये सब है, अच्छी बात है, लेकिन आदेश केवल कृष्ण का सुनना है। ए वॉइस इल हर्ड शैल स्पीक द सोल ओबे। सावित्री कौन सुनेगा? ये मन नहीं समझ सकता, हो सकता है, पर सोल तो फिर भी सुनेगी, बाहर आएगी, स्टेप आउट करेगी और इसके आनंद अमृत को ग्रहण करेगी। ए पावर इन टू माइंड्स इनर चेम्बर स्टील। ये इवोल्यूशन अब निश्चित है, मनुष्य पर डिपेंड नहीं करता है। स्टील, थेफ्ट सब जगह ये है। मैन कोलेबरेट ज़्यादा नहीं करेगा, भगवान चोरी छिपे आ जाएंगे उसके अंदर। पावर इन टू माइंड्स इनर चेम्बर स्टील, ए चार्म एंड स्वीटनेस ओपन लाइफ्स क्लोज डोर। सारे बंद दरवाजे भगवान के रस एक बूंद करके सब विष का शमन करेंगे। एंड ब्यूटी कॉन्कर द रेजिस्टिंग वर्ल्ड। सौंदर्य के द्वारा इस संसार की अगलीनेस, ईविल जहाँ से जन्म लेता है, अगलीनेस, ईविल, असुंदर भाव से, वो सब सौंदर्य से आप्लावित होकर चला जाएगा। द ट्रूथ लाइट कैप्चर नेचर बाय सरप्राइज। पता नहीं होगा प्रकृति को कि क्या घटना घटित होने वाली है, और धीरे धीरे अचानक हम लोग एक दिन देखेंगे कि ये कहाँ आ गए। हम यूं ही साथ चलते चलते भगवान के साथ, हाँ, डोंट मिस्टेक इट, कहाँ आ गए। अचानक मनुष्य देखेगा कि अरे 100 वर्ष पूर्व। अक्सर लोग कहते हैं कहाँ होता है, कहाँ इवोल्यूशन दिख रहा है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, 100 ईयर्स बैक जाइए, जब खुलेआम भारत माता की जय बोलने पर फांसी लटका करके ट्री के नीचे दे दी जाती थी, और नारियों की अवस्था कहते हैं ठीक है बहुत कुछ होना है, लेकिन उसी नारी की अवस्था ये थी कि चौखट के बाहर अगर आ गई तो कुलटा कुलच्छना। आदमी तो
जिसको कहते थे ना एक शब्द की, वो बैल है जहां चाहे घूम आए, लेकिन नारी उसको तो गौ, घर के अंदर है, चूल्हा चक्की कर। कहां चला गया वो संसार? वो संसार हम फिर से चाहते हैं? नहीं, वो संसार ओरिजिनल भारतवर्ष है ही नहीं। ओरिजिनल भारतवर्ष तो वो है जहां कैकेयी युद्ध में लड़ती हैं दशरथ के साथ, जहां सत्यभामा श्री कृष्ण के साथ देवों के अगेंस्ट संग्राम करती हैं और नरकासुर को मारने के लिए जाती हैं। ये भारतवर्ष है जहां द्रौपदी प्रण लेती है कि जब तक पूरी कुरुसभा नाश नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि वो कहती है दया है मेरे अंदर, लेकिन न्याय भी सर्वोप्रिय है, मैं न्याय को भी लेकर के प्रकट हुई हूं। यह है भारतवर्ष। तो वह सब ट्रुथ लाइट कैप्चर नेचर बाय सरप्राइज जो हम देख रहे हैं कि पिछले 100 वर्षों में, ये समय नहीं है इनके बारे में बात करने का। ए स्टेल्थ ऑफ गॉड कंपेल द हार्ट टू ब्लिस एंड अर्थ ग्रो अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन। कोई नहीं, सारी वो अभी देख रहे थे हंगर इंडेक्स, ये इंडेक्स, सब इंडेक्स, ये है वो है, ऐसे ही लास्ट में लोगों ने एक इंडेक्स नहीं देखा, डिवाइन इंडेक्स। धरती के अंदर उसके गहराई में क्या परिवर्तन हो रहा है, और वही अंत में प्रकट होता है। इन मैटर शेल बी लिट द स्पिरिट्स ग्लो। यहाँ पार्थिव जगत के भौतिक शरीर के रूपांतरण की बात है। इन बॉडी एंड बॉडी किंडल द सीक्रेट बर्थ, नाइट शेल अवेक टू द एंथम ऑफ द स्टार्स, द डेज बिकम ए हैप्पी पिलग्रिम मार्च, आवर विल ए फोर्स ऑफ द इटर्नल पावर एंड थॉट द रेज ऑफ ए स्पिरिचुअल सन। लास्ट की 4 पंक्तियाँ, डिबेट डिस्कशन हो रहे हैं टीवी पर, क्या होगा कल, क्या होगा। श्री अरविंद बता रहे हैं क्या होने वाला है। A few shall see what none yet understands. God shall grow up while the wise men talk and sleep. कृष्ण जन्म ले चुके हैं कारागार में, कंस का विनाश निश्चित हो गया है। God shall grow up while the wise men talk and sleep. होगा कि नहीं होगा? For man shall not know the coming till its hour. मनुष्य को नहीं पता चलना है, स्पष्ट कर दिया उन्होंने। उस पर डिपेंड भी नहीं करता है, मनुष्य उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को रूपांतरण की धारा में डाल ले, या वो बाकी स्पेसीज मेस्टोडॉन स्लॉथ की तरह जो नहीं डालना चाहते हैं वो पीछे की ओर चला जाए। एंड बिलीफ शेल बी नॉट टिल द वर्क इज डन। नमस्ते। समय का अभाव है तो मैं यहीं पर वाणी को विश्राम दूंगा, और मुझे पता नहीं समय है कि नहीं प्रश्न के लिए, बट अगर प्रश्न इस समय का अभाव हो तो प्लीज़ फील फ्री टू ईमेल। और वहाँ पे बहुत सारे सावित्री पे हंड्रेड्स ऑफ टॉक्स हैं, तो आप विस्तार में जाके अवश्य सुन सकते हैं। दे आर ऑल फ्री फॉर डाउनलोड। और सबसे बड़ी बात है, सावित्री 300 रुपये, 290 मुझे कहते हुए शर्म आती है इसमें, और ये बड़ा प्रिंट, इसमें सारी सृष्टि का, जीवन का, मनुष्य का, भगवान का, अभी और भी, और पीडीएफ डाउनलोडेबल फॉर फ्री, जो लोग इंटरनेट से जो टेक्स्ट अवी हैं या मोबाइल में, तो आ गई है। लेट अस सेलिब्रेट एंड डाइव इनटू इट्स ओशियन डेप्थ्स ऑफ सावित्री। अगर किनारे किनारे भी खड़े होंगे, थोड़ा बहुत भी सेवन करेंगे, तो बहुत सारे मोती तो ऐसी समुद्र के तट पे ही आ जाते हैं, और जितना गहरा उतरेंगे उतना वो अनेकों मोती, हीरे, कौस्तुभ मणि उनसे अलंकृत है सावित्री। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पांडे जी। आपने जैसे कहा कि हमें सबको ऐसे महसूस हो रहा है जिस प्रकार बच्चे समुद्र में जाते हैं और बाहर आने का मन नहीं करता, तो उसी प्रकार आप हमें उस समुद्र में, सावित्री के समुद्र में ले गए हैं, और हम सभी को बाहर आने का मन नहीं कर रहा है। बट आई थिंक बहुत सारे प्रश्न हमारा इंतजार कर रहे हैं। बट एवरी ज्ञान सभा हमारे टेकअवेज होते हैं, हमारे एक्शन प्लान्स होते हैं, जो हमारे आपके जैसे ग्रेट थिंकर्स, चेंज मेकर्स हैव गिवन अस। तो कुछ पॉइंटर्स सभी के सामने रखना चाहूंगी। Something for the takeaways, of course. Pondicherry is a place. It's a place of tapasya where each spiritual person needs to come. And I would really like to make a special mention that Diya Mumbai की भी टीम औरोबिंदो आश्रम पौंडीचेरी आई थी। अपने स्पिरिचुअल जर्नी हमने वहाँ से शुरुआत की थी एज अ टीम।
एंड देर आर अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स जो आपने हम सभी के लिए दिए हैं कि डिवाइन मैन बनाने का कारखाना है पौंडीचेरी. So I think one visit to Pondicherry Aurobindo Ashram is something that every spiritual enthusiast definitely should have. दिव्य का उद्घाटन है जिंदगी. और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पीड़ा आनंद की तैयारी है. So it's basically reinventing yourself. रीडिंग ऑफ सावित्री, जो किताब आपने कही, आई थिंक आज के ज्ञान सभा के बाद डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यू नो buy our own copy and delve into the samudra of Savitri, and this is where the beautiful journey, the spiritual journey is going to begin. So thank you so much on behalf of All World Gayatri Parivar, on behalf of all the participants, and on when we are celebrating the golden year, 50 years completion of Shanti Kunj, आप सभी से नम्र निवेदन है, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के बिहाफ पे आप और आपकी टीम पूरी हमारे शांति कुंज हरिद्वार जरूर पधारे when the situation is okay at your end. We humbly request you as a family member, आप जरूर और हमारी जो यूनिवर्सिटी है देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो नालंदा और तक्षशिला के लाइंस पर बनी है, शिक्षा एवं विद्या का अनूठा उदाहरण है. आप वहां पर आए और हमारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करें. उसके अलावा आई थिंक बहुत सारे प्रश्न हमारे बीच है. यू ऑल्सो मेंशन्ड एंड यू हैव रिटन अ लॉट अबाउट डेथ, सो देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर कनेक्टेड टू दैट. we have faced sudden loss of near and dear ones in COVID. How should the family overcome this sudden loss? मृत्यु खासकर जब सडन अनएक्सपेक्टेड होती है तो निश्चित रूप से वो एक पीड़ा का विषय होती है. एक मृत्यु होती है जो समय के साथ होती है, और एक असामयिक मृत्यु जो जिसकी बात आप कर रही हैं वो प्राइमरीली असामयिक मृत्यु है. तो जब मृत्यु होती है तो उसमें दो रिएक्शंस होते हैं. एक तो हम परपेचुअल लॉस में जाके ग्रीफ में चले जाते हैं, और हम सब जानते हैं कि, और ये ज्ञान हम सबको एक बैकग्राउंड में रखना चाहिए कि इस ग्रीफ से ना केवल हमें नुकसान होता है लेकिन जो यात्रा कर रही है सोल उसको भी नुकसान हो रहा है. वास्तव में देखा जाए तो हम ग्रीफ किसके लिए करते हैं? उसके लिए नहीं जो चला गया है. हालांकि हम कहते हैं कि उसके लिए हम पीड़ित हैं. जो चला गया है, कम से कम भारत की संस्कृति में तो हम ये जानते हैं कि वो भविष्य की एक सुंदर यात्रा में गया है. वो अपना शरीर बदल रहा है, अपनी यात्रा को नहीं रोक रहा है, उसका विनाश नहीं हो रहा है. जो गीता में बात कही गई है हमारे नस नस में बैठ जानी चाहिए कि जो चला गया उसके लिए हम शोक ना करें, क्योंकि वो तो एक बेटर स्टेट पे जा रहा है. बल्कि हम उसकी यात्रा को असिस्ट कर सकते हैं अपने प्रेम को उसकी ओर भेजकर, शांति को भेजकर. क्या हम जाते जाते किसी को अपने दुख के बोझ से लाद कर भेजेंगे? कितनी पीड़ा और कष्ट और होगी. ऑलरेडी जब शरीर को हम छोड़ के जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो शरीर एक प्रकार का डिफेंस होता है जिसमें हम एक थिक चोला है जिसमें बहुत सारी संवेदनाएं स्पर्श नहीं कर पाती हैं. शरीर जब नहीं होता है तो प्राण तत्व जिसके लिए श्राद्ध किया जाता है तो वो तो बहुत ही अधिक वो छोटी भी संवेदनाओं को टच करता है. एक पैसेज होता है 12-13 दिन का खासकर, जिसमें हमारे दुख, पीड़ा, कष्ट, हमारी संवेदनाएं बहुत एक्यूट रूप में टच करती हैं. और चूंकि कुछ कर नहीं सकता जो जा रहा है उसको बहुत कष्ट होता है. क्या हम इस तरह से अपने स्वजनों को भेजना चाहेंगे, या इस तरह से जैसे वीरांगनाएं भेजती थी, वीर माताएं भेजती थी कि तुम जा रहे हो, जाओ, गो टू हायर फील्ड्स, मोर ल्यूमिनस फील्ड्स, कम बैक इन टू ए बॉडी न्यू एंड फ्रेश विद ए ग्रेटर संकल्प. ये भारतवर्ष की देन है. तो हमको उस भाव से सेंड ऑफ करना चाहिए. पीड़ा होगी लेकिन पीड़ा से अधिक हमारे अंदर ये भविष्य का भाव होना चाहिए. दूसरा, अब लॉस हमारे लिए लॉस होता है क्योंकि एक व्यक्ति जिससे हम जुड़े थे, अटैचमेंट था, वो चला गया, उसको हम देख नहीं पाएंगे, एक चेरिश्ड वॉइस को सुन नहीं पाएंगे. हाँ, लेकिन हर व्यक्ति का एक सार तत्व हम सबके साथ होता है जो ओवर ईयर्स अपने आप को रिवील करता है. एनी रिलेशनशिप, इवन जो पीड़ा देने वाली रिलेशनशिप है उसमें भी एक सार होता है जो कई वर्षों बाद, कई बार जब संबंध विच्छेद हो जाता है तो अपने आप को अंदर से रिकवर करता है और प्रकट करता है. तो हमको उस सार तत्व को ढूंढना चाहिए. वो व्यक्ति केवल एक शरीर और एक सीमित वो नहीं है, उसके अंदर बहुत सी पहले एक अच्छी स्मृतियों को स्मरण कीजिए, ना कि बुरी स्मृतियों को. और उसके बाद उसको एक अंत में एक अच्छी स्मृतियों का रूप देकर, एक सौंदर्य में एक ल्यूमिनस फॉर्म देकर के
अपने अंदर किसी कोने में हृदय के किसी भाग के साथ जोड़ दीजिए। ये हम मनुष्य के रूप में कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, साधारण नहीं है, लेकिन अगर एक व्यक्ति करना चाहे तो कर सकता है कि वो अब आगे जा रहा है और उसको अब एक ल्यूमिनस फॉर्म देके, उसकी सुंदर चीज़ों को स्मरण करके, उसके अंदर जो अभीप्सा है उसको स्मरण करके, और तब आपको एक सांत्वना होगी, तब आप देख पाएंगे कि उसके जीवन का कनेक्ट क्या था और वो किस तरफ जा रहा है, और उसको अपने अंदर में रख करके और अभीप्सा के रूप में भगवान को समर्पण कीजिए। फिर भी यदि याद आता है तो रोज उसके नाम पर एक दिया जलाएं और माता जी को प्रे करें, डिवाइन मदर या डिवाइन को जिस भी रूप में। प्रे फॉर द पर्सन टू द डिवाइन। आप देखेंगे कि डिवाइन मीडिएट करेंगे आपके और उसके बीच, उसको कल्याण के मार्ग पर ले जाएंगे और आपके अंदर दुख का शमन होगा। और कौन दुख को हर सकता है सिवाय उनके जिन्होंने सृष्टि बनाई है। तो ये कुछ में सिंपल उपाय, और अगर नहीं तो फिर तो अब साइकेट्रिक तरीका, वो आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, पर ये तरीके हैं जिससे हम जो स्वजन जो चले जाते हैं, और ये भी याद रखना जरूरी है, इनसे एक व्यापक लेसन लेना कि ये मृत्यु संसार के साथ जुड़ी हुई है। बात ये नहीं है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसको हम चाहते हैं, बात ये है कि मृत्यु क्यों है। तो वो जब हम उस इंडिविजुअल क्वेश्चन को कॉस्मिक क्वेश्चन बना देते हैं, तो यही अंतर होता है एक साधारण ग्रीविंग पर्सन में और एक बुद्ध में, कि वो उस चीज को एक यूनिवर्सल क्वेश्चन के रूप में कि ये मृत्यु नहीं होनी चाहिए, लेट अस फाइट एंड कॉन्कर डेथ। ऐसा नहीं होना चाहिए संसार में। बात ये नहीं है कि मेरे अपने के साथ हुआ, ये संसार में होता है, और उसको लड़ने का उपाय, उसके विजय की यात्रा का, विजय अभियान का सारा मार्ग और सब कुछ वो हम सावित्री में पाते हैं। हाउ टू फाइट एंड कॉन्कर डेथ। नमस्ते। The spiritual way is definitely going to help all of us someday or the other. एक दूसरा प्रश्न नवनीत कुकरेजा जी ने पूछा है, why at all the wheel of Maya was put on us? Why are we not born as children of light straight away? तो वो मैंने प्रारंभ में ही उसका वर्णन दे दिया था। अब देखा जाए तो डिवाइन ने अपने अंदर से बिना माया के वेल के गॉड्स निकाले, लेकिन अब समस्या ये कि हर एक गॉड एक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, बट हमेशा ही इज यूनाइटेड विद द डिवाइन। उसकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी गॉड्स की अगर क्रिएट करनी है तो उसको एक फॉर्म, एक रूप देना, एक आकृति देनी है। माया क्या करती है? मेजर आउट करती है, मात्रा, उससे ये शब्द आता है माया, मात्रा, माता, वो एक रूप देती है, आकृति देती है। बिना रूप और आकृति के जो अगर वो लाइट के फॉर्म्स होंगे वो लाइट में मर्ज हो जाएंगे। कितनी देर तक रहेंगे? आप देखिए जब अग्नि जलती होती है, अग्नि के अंदर से अनेकों रूप प्रकट होते हैं ना, थोड़ी देर में वो वापस चले जाते हैं। अगर पंचभूत की प्रोसेस देखें तो अग्नि के साथ पहले रूप आकृति फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। पहले भी होता है जब वायु तत्व है और आकाश तत्व के अंदर तो नहीं, पर वायु तत्व के साथ रूप फॉर्मेशन, फिर अग्नि, लेकिन वो स्थिर नहीं होते हैं। इसलिए उसको जल तत्व में प्रवेश कर अट्रैक्शन, रिपल्शन, और लास्ट में ठोस पदार्थ, धरती तत्व, पृथ्वी तत्व। तो अगर भगवान एको हम बहुश्यामी का संकल्प नहीं लेते तब बात अलग थी, लेकिन तब तो फिर माया की क्या, किसी चीज की जरूरत नहीं है। डिवाइन को अपने अंदर से अनेकों गॉड्स को निकालना और वापस ले आना अपने अंदर, इट मेक्स नो सेंस। तो इसलिए उन्होंने जो एक्सट्रीम गेम खेला वो इसलिए कि एक खांचा बने जिसके अंदर एक एक एस्पेक्ट भगवान का एक बीज रूप में डाल दिया जा सके। और अब ये डिवाइन सेल्फ लॉस, अगर इसको हम देखें मैथमेटिकली, तो उन्होंने कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूट किया कि ठीक है इसमें रिस्क है, डेंजर है, लेकिन अल्टीमेट उनका विजन है कि द एंड इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। केवल गॉड्स को क्रिएट करना जैसे है सुपरामेंटल वर्ल्ड के ऊपर, लेकिन हम उनके नाम तक नहीं जानते, क्योंकि वास्तव में वो निकलते हैं और वापस मर्ज हो जाते हैं, लाइट से निकलते हैं, लाइट में चले जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने रूप देना प्रारंभ किया इवन गॉड्स को, जो ओवर माइंड के नीचे आता है, तो वहां से प्रारंभ हो गया रूप देने के साथ में अलग अलग सत्ताएं। तो हम देखेंगे कि ओवर माइंड के गॉड्स आपस में भी कई बार सामंजस्य नहीं रख पाते हैं, और फिर जैसे जैसे ये रूप देने की प्रोसेस प्रारंभ होती है तो बिल्कुल निश्चेतना में जाती है। तो माया को ये काम सौंपा गया कि इन्फिनिट को फाइनाइट नेम और फॉर्म, जिससे वो एक अनेकत्व में आ सके। या तो फिर वो संकल्प नहीं लेते, अगर इसके ओरिजिन में चले जाएं तो फिर तो प्रश्न ये होना चाहिए कि उन्होंने संकल्प ही क्यों लिया। एक अकेले थे काफी थे, तो एक अकेले काफी नहीं थे, क्योंकि एक के अंदर अनंत जो छिपा है वो कैसे प्रकट होगा। एक आनंद अनेकत्व के आनंद में, और एक ऐसी शक्ति है ईश्वर के अंदर जो सृष्टि के इस एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट के बिना प्रकट नहीं हो सकती, और वो शक्ति है लव।
एकदम अदरनेस ऑफ सेल्फ। अब ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि भाई ये भी फिर उसको प्रकट करने के लिए इतना सारा झंझट झमेला। यस, आवर ईगो डज फील द पेन कि भाई ये सारा करा, लेकिन अगर आप इसको दूसरे ढंग से देखें कि व्हाट अबाउट अवर सोल्स, आवर सोल रिजॉइसेस। और सच है ये कि दोनों साथ में चलती हैं। अगर हम एक सीमित मनुष्य के रूप में अपने आप को देखें तो लगता है इतना झमेला, इतना प्रपंच, इतना नाटक क्यों किया भगवान ने। सोल कहती है अरे वाह, एक एक बिंदु भगवान जैसा बनेगा, आपने हमें 1000 वर्षों की यात्रा पर डाला है, सो हमें आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। वह जो आनंद एक बीज रूप में वो अनेकत्व में परिवर्तित होगा। तो ये दोनों स्टैंड पॉइंट हैं। एक स्टैंड पॉइंट है जो हमारे ईगो सेल्फ का है, जिसके लिए सब प्रपंच, जैसे एक बच्चा हो उसको आप भेजें सैनिक स्कूल में तो उसको बड़ी समस्या होती है, ये क्या है, सुबह से डिसिप्लिन कर रहे हैं, पनिशमेंट वाले स्कूल में है। और वही एक बच्चा है उसमें से एक जो कहता है मुझे देश की सेवा करनी है। तो अब एनडीए का रूटीन देखिए, आपको परेशान हो जाएंगे कि ये सुबह सोने का समय नहीं मिलता है, 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे सोने जा रहे हैं। लेकिन वही जब वापस निकलते हैं शान के साथ और सिर खड़ा करके चलते हैं और कहते हैं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, तो वो जो आनंद है, कोई भी एडवेंचर का यही समस्या है। ईगो सेल्फ एडवेंचर से कतराता है, लेकिन स्पिरिचुअल सेल्फ, डिवाइन सेल्फ, वो कहता है चलो आज चढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट। तो वो जो आनंद है, जो एडवेंचर का आनंद है, जिसमें प्रेम हमारे साथ चलता है, उसके लिए संसार बनाया गया है। अब उसका सॉल्यूशन यही कि हम ईगो सेल्फ की जगह जितनी जल्दी अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को कनेक्ट कर लें तो हमको ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। माया का एक दूसरा खेल शुरू हो जाएगा। माया विल टेक अ बैक सीट और भगवान की शक्ति विल बी इन द फोर फ्रंट। तो दिस इज द होल प्रोसेस। वही हम लोगों ने बात भी की थी, माया इज ए वेल ऑफ द एब्सोल्यूट। अनेकत्व बनाने के लिए माया की आवश्यकता थी, और वो अनेकत्व देवताओं से शुरू होता है। मनुष्य तो बहुत बाद में आता है, फिर अंत में जड़ तत्व के एक अणु अणु में वो अनेकत्व चला जाता है। अब तो वो संगठन और संयोजन की प्रोसेस से मनुष्य विकास से आ रहा है। सो वी आर ऑलरेडी राउंड द कॉर्नर। सो लेट अस थिंक ऑफ हाउ माया की जगह अब डिवाइन शक्ति हमको चलाने लगे। दिस इज द क्वेश्चन वी शुड आस्क नाउ। ऑलरेडी हम लोग बहुत आगे आगे हैं। अणुओं ने ये प्रश्न नहीं पूछा, दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द लैप्स। पेड़ पौधों भी नहीं पूछा, भगवान ने कहा इनको इतनी चेतना ही नहीं देते हैं परेशान हो जाते हैं। पशुओं ने भी नहीं पूछा, मनुष्यों में भी 90% नहीं पूछते हैं, कर्ज करते हैं, कंप्लेन करते हैं, बाकी वो ठाट से बैठे रहते हैं। मनुष्यों में जब ये प्रश्न आ जाए कि ये संसार क्यों बना, आप समझिए कि यू आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। नवनीत भाई पंजाबी में कहते हैं नेड़े ही हैं, तो वी आर राइट देयर। दैट्स वाई द क्वेश्चन हैज कम। सो लेट अस रिजॉइस दैट वी आर राइट देयर। नमस्ते। नमस्ते। आपने रिजॉइस कहा तो एक अंतिम प्रश्न लेना चाहूंगे आपसे परमिशन लेकर। तो आपने जस्ट वांटेड टू आस्क हाउ लव, बिलोंगिंगनेस, कंपैशन be expanded in our day-to-day lives. Your experience being in the Indian Armed Forces, your experience being in the great ashram at Auroville. देखिए, प्रेम तो सृष्टि का सार है, और सच तो यह है कि प्रेम के बिना कुछ है नहीं, सृष्टि ही नहीं है। तो लेकिन वह प्रेम जिसको हम प्रेम कहते हैं, मानव प्रेम, वो एक बहुत सीमित और असक्षम, और उसकी एक आई वुड से कि एक बड़ी लिमिटेड और विकृत सी चीज़ है। तो पहले हमको उस प्रेम को अपनी चरम पॉसिबिलिटी तक पहुंचाना है, और उसका मार्ग है, प्रेम ही उसका मार्ग बताता है, और वो है कि मानव प्रेम को दिव्य प्रेम में रूपांतरित करना। और उसके 2 मार्ग हैं। एक है किसी मनुष्य को, पशु, जीव, किसी को आप प्रेम करिए, लेकिन प्रेम ऐसे करिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी सेल्फिश रीजंस, विदाउट एनी कैलकुलेशन, बार्गेन। आप डिवाइन लव के प्रिंसिपल को टच कर जाएंगे। कठिन है, बहुत कठिन है। तो एक सिंपल तरीका भगवान ने बनाया हुआ है, शॉर्टकट, भगवान से प्रेम करना क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके अनुरूप हो जाते हैं। तो भक्ति के द्वारा हमारे अंदर जो मानवीय प्रेम है वो दिव्य प्रेम में रूपांतरित होने लगता है, और जब हम वो रूपांतरित होने लगता है तब मैत्री, करुणा एवश्य जिसकी आप बात कर रहे हैं, देन द रेस्ट कैरीज ए मीनिंग। अगेन कंपैशन, कंपैशन प्रेम का एक रूप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम जिस स्टेज पे खड़े होते हैं मनुष्य आमतौर पर, वहाँ करुणा नहीं होती, काइंडनेस और पिटी होती है। इसी के हम कैपेबल होते हैं, हेल्प नहीं कर पाते हैं। कंपैशन के लिए हमको ऊपर से देखनी होती है चीज़ें।
जो कंपैशनेट होता है वो ऐसे नहीं कहता वो बेचारा, वो पिटी है। दया भी एक प्रकार से ठीक है, मैं इसको ये दे दूं। कंपैशन रोग के सही मूल को पकड़ता है और उसका इलाज करता है, कभी कभी सर्जरी के द्वारा करता है। ये श्री कृष्ण की करुणा है कि उन्होंने पार्थ को कहा कि गांडी उठा और सामने जो है इनका नाश कर, क्योंकि इनके अंदर जो सोल्स हैं वो तड़प रही हैं। तो करुणा एक बहुत बड़ा शब्द है। करुणा का अर्थ ही यही है, टू लिबरेट द सोल्स फ्रॉम द क्लच ऑफ इग्नोरेंस। तो पहले हम स्वयं जब फ्री होते हैं इग्नोरेंस से, तभी हम फ्री कर सकते हैं। तो जहाँ तक मेरे अनुभव की आपने बात की एयरफोर्स में, अदरवाइज जीवन में, तो प्रयास फिर जब ये बोध हो गया तो प्रयास यही रहा कि कैसे अपने अंदर की सभी ऊर्जाओं को, नॉलेज को, सीमित ह्यूमन नॉलेज को डिवाइन नॉलेज में परिवर्तित हो सके, और सीमित ह्यूमन लव कैसे डिवाइन लव में परिवर्तित हो सके, सीमित ह्यूमन एनर्जी कैसे डिवाइन एनर्जी में परिवर्तित हो सके। और उसका सिंपल साधन तो मेरे लिए तो वही रहा जो श्री अरविंद ने लिखा है, टू रिमेन साइकिकली ओपन टू द डिवाइन मदर। तो बस वो माँ से जोड़ लिया या माँ ने स्वयं से जोड़ लिया, और जो कुछ भी उसके बाद घटित हुआ, क्या क्या हुआ हंगामे वो नहीं मालूम। तो उसके बाद बस आनंद ही आनंद होता है। सो द प्रोसेस इज टू टर्न इनवर्ड एंड अपवर्ड टू द डिवाइन एंड ओपन वन सेल्फ, और भगवान से हम अभिप्सा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, कि हमारी प्रकृति को अपने जैसा गढ़ दो। अभी तो बहुत कुछ पशु से मिलती जुलती है, ह्यूमन कलरिंग है, जिसको हम ह्यूमन लव बोलते हैं, उसके पीछे खड़ा होता है एक पशु, राक्षस, असुर सब खड़े होते हैं। तभी तो आप देखते हैं स्टोरीज लव की कैसे प्रारंभ होती है, आई लव यू। अब वो पिक्चरें पुराने समय की खत्म हो जाती थी, वो एंड दे लिव्ड हैप्पीली हियर आफ्टर, ये लिखता नहीं था कोई। फिर बाद में रियलिज्म आया कि यार ये तो होता नहीं है, तो फिर उन्होंने वो कोर्ट कचहरी शुरू कर दिए। पेड़ के चक्कर काटते थे, दोनों मिल गए, प्रेमी प्रेमिका, पता नहीं कितने कष्ट के बाद अब स्टोरीज आने लगी कोर्ट कचहरी की, नारी तो अबला क्यों है, सशक्त बन, इत्यादि स्प्लिटिंग स्टोरीज शुरू हुई, रियलिज्म। अब तीसरी जो स्टोरीज आने वाली हैं और आनी शुरू हो गई कि नहीं, हम एक सुंदर प्रेम को, दिव्य प्रेम को जीवन में अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिससे बिगिनिंग से एंड तक, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ आई लव यू टू लव देयर इज नाइदर आई नॉर यू, वो सारी की सारी कहानी सुंदर हो सके। प्रयासरत हैं। I think beautifully said, beautifully ended. That is प्यार प्यार प्यार, यही हमारा मंत्र है, which is the philosophy of All World Gayatri Parivar. And we'll come back again. I think this is not the end. This is the beautiful beginning. Sir, we humbly request you to have more sessions with us. And I think today's session was just the beginning. We would love to hear more from you with another few sessions from you. I'm sure that you agree to this humble request from volunteers of All World Gayatri Parivar. निश्चित, अवश्य।